Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with class 7 civics chapter 2, role of government in health. In democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do we think this topic is related to work of government? कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, हाउसिंग में, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इन सब में काम करे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। नाउ व्हाट इज हेल्थ? तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहिए, बट हेल्थ एक्चुअली में है क्या? So we can think of health in many ways. Health means ability to remain free of illness and injuries. तो हेल्थ क्या है कि अगर हम फ्री रहें फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज से, सब फ्री रहें। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीज। बट ऐसा नहीं कि अगर हमें कोई डिसीज हो गई तभी हमारी हेल्थ बिगड़ेगी, वैसे नहीं। यू मे नॉट you may have associated only some of the situations in which above collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. कि सारी situations हमारी health से related है. Apart from disease, we need to think of other factors and that affect our health. हमें और सारे factors को भी consider करना पड़ेगा जिससे हमारी health affect होती है. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. अब सही बात है, अगर हमें एकदम साफ पानी मिल रहा है और एकदम pollution free environment मिल रहा है तो हमारी health अच्छी होगी. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. पर अगर उनको लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, सही खाना नहीं मिल रहा, कम खाना मिल रहा है उनको, और उनको एक एकदम गंदी सी लोकेशन पे रहना पड़ रहा है, तो उनको इलनेस, मतलब उनको उनकी हेल्थ डिटोरिएट होगी, उनकी हेल्थ सही नहीं रहेगी. All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. कि अगर हम सही नहीं रहेंगे, हम एकदम बिल्कुल भी बिल्कुल भी हम डल है, मतलब हमारे फेस पे कोई शाइन नहीं है, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, एक्टिवली नहीं कर पा रहे, स्केयर्ड है, डर लग रहा है हमें, तो हमें क्या होगा? हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हेल्दी नहीं है, अंदर से हम हेल्दी नहीं है, हमें सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं हो रही हैं. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हमें कोई मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर द पार्ट ऑफ हेल्थ. ये सारी चीजें हमारी मिलके क्या है, पार्ट ऑफ हेल्थ बनाती हैं. नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया. Let us examine some of the aspects of healthcare in India, compare and contrast the situation expressed in first and second column. So India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in each year, in every year. Most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population much less than in rural areas. अब हमें पता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट है मेडिकल कॉलेजेस में, और हर साल 30,000 न्यू डॉक्टर्स बनते हैं, बट ये सारे सेटल कहाँ होते हैं? अर्बन एरियाज में. रूरल एरियाज में लोगों को डॉक्टर नहीं मिलता और उनको काफी दूर जाना पड़ता है ट्रीटमेंट लेने के लिए. Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India, and in 1991, there were 11,174 hospitals. In 2017, the number grew to 23,583. Now, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. The number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number isn't decreasing.
तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, हॉस्पिटल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, बट हमारी जो डिसीजेज है वो भी हमारी कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं. India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable disease are waterborne, for example, diarrhea, worms, etc. तो हमारा जो है बाहर से लोग आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट की अपनी अपना इलाज कराने बाहर से लोग आते हैं हमारे कंट्री में, बिकॉज हमारे कुछ कुछ हॉस्पिटल्स जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट हैं. और एक तरफ क्या है कि हम अपने जो पॉपुलेशन है, हम अपने पीपल को साफ पानी भी नहीं दे पाते, और उससे क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, मीन्स जो फैलती हैं. India is third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicine. इंडिया प्रोड्यूस भी करता है मेडिसिन, प्रोड्यूस करने में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, और वो इम्पोर्ट भी कर और वो एक्सपोर्ट भी करता है मेडिसिन. एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से किसी और देश में भेजता है. Half of the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. और एक तरफ तो हम मेडिसिन भेज रहे हैं बाहर, एक तरफ हमारे देश में हाफ ऑफ द चिल्ड्रन को खाना नहीं मिल पाता, एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता. In order to prevent and treat illnesses, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, labs for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. हमारी हम प्रिवेंट इलनेस को ट्रीट करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे वी शुड हैव एप्रोप्रिएट, हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, एम्बुलेंस की अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए, लैब्स होने चाहिए टेस्ट के लिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए जो कि प्रोवाइड कर सके सर्विसेज पेशेंट्स को. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेसेस. और इस चीज के लिए हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, नर्सेस भी चाहिए, और भी अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए जो हमें एडवाइस कर पाए, जो पेशेंट्स को एडवाइस करे और वो ट्रीट करे उनकी इलनेस को. वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स. These facilities are required to take care of us. और हमें मेडिसिन भी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी चाहिए. Now India has large number of doctors, clinics and hospitals. ये तो हमने देख लिया कि कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितने डॉक्टर्स हर साल 30,000 डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. और हमारे जो कंट्री है उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ केयर मीन्स गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको हम पब्लिक कहते हैं. लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जो पब्लिक वो जो गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट चलवाती है. नाउ दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट. जिस चीज के आगे पब्लिक लग गया वो मतलब गवर्नमेंट रन करती है. इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. और ज्यादातर जगह जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं वहां पे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, और पब्लिक हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को वो ट्रीट करती है. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. Now, however, the second column points out how poor and health situation in our country is. हमने फर्स्ट कॉलम में देखा कि इंडिया की कैसे हेल्थ सेक्टर में वो ग्रो कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स ग्रो कर रहे हैं, डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई हो रहे हैं, हम मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं. फर्स्ट कॉलम में हमने ये सब देखा, बट हमने सेकंड कॉलम में क्या देखा कि कितना पुअर है इंडिया हेल्थ सेक्शन में, कि क्लीन वाटर नहीं मिलता, रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स नहीं है, लोगों को दूर तक जाना पड़ता है. विद ऑल the above positive developments we are not able to provide proper healthcare facilities to people. इतनी सब कुछ फैसिलिटीज होने के बाद भी हम पीपल को अच्छी हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं. दिस इज द पैराडॉक्स.
मीन्स दिस इज आयरनी कि सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है. Something that is contrary to what we would expect. कि our country has money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter, we'll look some of the reasons for this. कि हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे अपने लोगों को, हम क्यों अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हेल्थ सेक्टर में. Now the cost of a cure. Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from well-to family, Aman parents have to struggle to meet their make ends meet. Hi Aman, good to see you. How have you been? I had a viral fever and had to go to hospital. Oh, me too. I just got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at a new hospital in Kingsway. It is very exciting. So, एक Ranjan और Aman, they are good. दो दोस्त है. Aman is from poor family, we can say, and Ranjan is from good family. नाउ द बिल्ड, तो दोनों बीमार हो जाते हैं. तो अमन कहता है कि मैं बीमार था और रंजन भी कहता है मैं बीमार था, तो मेरे फादर मुझे एक अच्छे से हॉस्पिटल लेके गए. द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वाज अ 5 स्टार होटल. तो रंजन बता रहा है कि बहुत बिल्डिंग एकदम बहुत बड़ी थी, एकदम पॉश होटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था वो, विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, और हर फैसिलिटी बहुत अच्छी थी. डैडी had to pay ₹500 at the reception counter itself before we even meet the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. तो वो बता रहा है कि हमें ₹500 पे करने पड़े रिसेप्शन पे, हम डॉक्टर से मिले भी नहीं, उससे पहले हमें पे करने पड़े, और बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर था. The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. तो डॉक्टर जो है और जो लैब टेस्टर है उन्होंने बहुत अच्छे उसको जोक सुनाए और उसको पेन फील नहीं हुआ. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम, we went back to doctor. He looked through them and said everything was fine and I had only viral fever. He prescribed some medicines and rest. तो जब टेस्ट रिजल्ट्स आए तो डॉक्टर के पास है तो उन्होंने कहा बस वायरल फीवर है. So thank you, doc. Now you see, I have been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go to? तो रंजन पूछ रहा है अमन से कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गए. It wasn't nice as yours at all. At first, Abba didn't want to take me because he said it would take so much time. And it really did. We went to big government hospital. We have to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. अमन कहाँ पे गया, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वो भी काफी बड़ा था और उनको बहुत ज्यादा लाइन में वेट करना पड़ा अपने टर्न के लिए. When our turn came, the doctor examined me and asked for the blood test. Then we had to go and stand in another long queue. People were crowding around in the testing room too. फिर हमने जब टेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा तो हम फिर टेस्टिंग रूम में गए, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी. We got the test results after 3 days. हमें 3 दिन के बाद and went back to the hospital. There was different doctor that day. हम 3 दिन के बाद हमें टेस्ट रिजल्ट आए और हम फिर से डिफरेंट डॉक्टर के, अब फिर हम वहां पे गए तो वहां पे डिफरेंट डॉक्टर था. He seems to be suffering from viral fever. Nothing to worry about. All he needs to is the one fever reducing medicine. तो उन्होंने भी यही कहा कि medicine उसको fever viral fever ही है and he will be fine. My hospital was nice but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. My treatment did not cost much. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रंजन कह रहे हैं कि मुझे भी मेडिसिन दी और काफी कॉस्टली थी वो मेडिसिन, और अमन को क्या कहा कि मेरी मेडिसिन इतनी कॉस्टली नहीं थी. तो डिफरेंस क्या हुआ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट में गया वो पब्लिक में गया. तो प्राइवेट में क्या हुआ, वो आराम से एकदम नाइस एटमॉस्फेयर था, फीस ज्यादा थी बट क्लीन एटमॉस्फेयर था, शाइनी एटमॉस्फेयर था, ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्राउडेड नहीं था. और उल्टा इसमें और मेडिसिन बहुत कॉस्टली थी. कॉन्ट्ररी टू दैट पब्लिक हॉस्पिटल में क्या था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था, बहुत टाइम लगा उसको, 3 दिन रिपोर्ट्स आने में लग गए. और वैसे वो जो डॉक्टर की फीस और मेडिसिन सस्ती थी. From the above story, we must have understood that we can roughly divide up various health care facilities in two categories में हम कर सकते हैं, public health services and
private health facilities. Now, the public health service is a chain of health centers and hospitals run by the जो government run करता है वो public health है. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illnesses to special services वो provide कर पाए. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illnesses and work under the supervision of doctors at primary health center. विलेज लेवल पे क्या होता है, एक हेल्थ सेंटर होता है, वहां पे एक नर्स होती है और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं. दे आर ट्रेन्ड, उनको ट्रेन करा जाता है कॉमन इलनेसेस के लिए एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में. सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस एंड रूरल एरियाज को कवर करते हैं ऐसे हेल्थ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल is the district hospital that also supervises all the health center. तो ये तो हमारे विलेज लेवल पे हो गया. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, जो सुपरवाइज करता है. लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals. Now, the health service is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. अब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो नॉर्मल पब्लिक को भी अच्छे से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारे हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करे हैं. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to government as taxes. और ये जो हॉस्पिटल्स चलते हैं, जो हेल्थ सेंटर्स चलते हैं, वो उसी टैक्स के पैसे से चलते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. टैक्स जो हम पे करते हैं उन्हीं पैसे से ये सब चलते हैं. Hence, such facilities are meant for everyone. तो कोई भी जा सकता है इनमें. One of the most important aspects of public health center is that it is meant to provide quality health care services either free or at low cost so that even the poor can seek treatment. अभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी फीस लो होती है. क्यों लो होती है? ताकि हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर पाए. ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच ही कर रहे हैं, वो तो रिच तो प्राइवेट में करवा लेंगे और पुअर के लिए कोई सर्विस नहीं है. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, कि इन सबको प्रिवेंट करे वो स्प्रेड होने से. This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. और गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है कि पार्टिसिपेट करें पीपल इसमें, जैसे ताकि लोगों को इफेक्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफटॉप एटसेट्रा, दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेस इन द एरिया. कि देखना है कि कैंप की लोग पानी कूलर में पानी नहीं छोड़ते, क्योंकि क्या क्या होता है, मॉस्किटोज आ जाते हैं. मॉस्किटोज आएंगे तो वहां पे डिसीजेस फैलेंगी डिफरेंट डिफरेंट. नाउ फर्स्ट वी कैन व्हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी. अब हमने देखा कि जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो टैक्स के पैसों से होती है. अब हम पे क्यों करते हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस? गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स. अब जैसे देखा हमने कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. benefit all citizens. अब डिफेंस है, पुलिस है, ये तो हर एक इंसान को हेल्प करेगी. अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्फ. सिटीजन खुद तो ऑर्गेनाइज नहीं, खुद अपनी पुलिस तो नहीं लाएंगे, खुद अपना डिफेंस नहीं लाएंगे, खुद अपने हाईवेज नहीं बनाएंगे, तो ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. Taxes fund developmental programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. तो ये सब टैक्स फंड किस लिए यूज होता है? एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेंटर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन सब के लिए यूज होता है. रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स. टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल. अब रिहैब क्या होता है? रिलीफ एंड रिहैब. सपोज कहीं पे कोई डिजास्टर आ जाता है, तो सपोज कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो
उस समय जो डिफेंस जाता है, एकदम से वहां पे फूड ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्लोथिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, तो ये सब टैक्स के पैसों से ही होता है. Government provides some services, especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. गवर्नमेंट ये सारी चीजें सर्विसेज ऑर्गेनाइज करती है पुअर लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते. वही चीज पब्लिक पब्लिक हॉस्पिटल में सस्ता हो जाएगा काम, हमारा कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, फीस इतनी ज्यादा नहीं लगेगी. वही प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारी बहुत ज्यादा फीस लगेगी, मेडिसिन भी महंगी होंगी. Now, according to the Constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. ये Constitution में लिखा है हमारे कि ये primary duty है, means the first duty of the government कि वो welfare देखे अपने citizens का. The government must safeguard the right to life of every person. If the hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. अब ये राइट टू लाइफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसमें क्या है कि हर एक इंसान हर एक इंसान को गवर्नमेंट देगी कि उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए. और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, टाइमली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट इज नॉट फुलफिलिंग इट्स job properly. Now, the court also said that it was a duty of government to provide necessary health services, including treatment in an emergency situation. Hospitals and medical staff must fulfill their duty to providing the necessary treatment. कि अगर कोई emergency situation आ गई तो वो government provide करेगी उसकी facilities. Therefore, the court asked state government to give him the money that he had spent on his ट्रीटमेंट. तो कोर्ट ने क्या स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है ऐसी तो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी उसके ट्रीटमेंट को. नाउ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं ना क्लिनिक्स. इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many labs that do tests and offer special facilities such as X-rays, ultrasound, etc. There are also shops from where we can buy medicines. अब rural areas में तो one can find रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो फाइंड कर सकते हैं, बट अर्बन एरियाज में बहुत सारे तुम्हें क्लिनिक्स मिलेंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स मिलेंगे जो कि प्राइवेटली ओन्ड होते हैं. मींस जो उसका ओनर है वो गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक पर्सन है. काफी सारे लैब्स होते हैं और एक मेडिसिन की शॉप भी होती है अलग प्राइवेट. दिस इज ऑल प्राइवेट. As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services and private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. अब नाम से पता लग रहा है प्राइवेट मीन्स ये गवर्नमेंट ओन नहीं करती, ये कोई अलग बंदा ओन करता है. ठीक है. नाउ और इसके मतलब अगर कोई प्राइवेट फैसिलिटीज हम यूज करते हैं तो पेशेंट्स को उसको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, लॉट ऑफ मनी उसको देनी पड़ती है. Now, today the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are some companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. कुछ अब क्या है प्राइवेट फैसिलिटीज हमें हर जगह दिखती हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, लैब सेंटर्स. इनफैक्ट नाउ और बहुत सारी जो कंपनीज है, लार्ज कंपनीज है, या तो वो हॉस्पिटल्स रन करती हैं, हॉस्पिटल्स लार्ज कंपनीज हॉस्पिटल रन कर रही है, या फिर वो मैन्युफैक्चर कर रही है, रिसर्च कर रही है एंड और मेडिसिन को सेल कर रही है. नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. Is adequate health center available to all? In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is
an illness in the family. अब क्या हमारे देश में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ रही है बट पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही होते हैं। तो और कॉस्ट ऑफ, अब हमने देखा कि काफी कॉस्टली होती है, मेडिसिन एक्सपेंसिव होती है, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इसको और उनको बोरो करना पड़ता है मनी। नाउ सम प्राइवेट सर्विसेज encourage incorrect practices to earn more. At times inexpensive alternatives though available may not be used. अब क्या प्राइवेट सेक्टर्स क्या करते हैं, उनको पैसे कमाने हैं, तो वो सपोज किसी को एक इलनेस है, किसी को एक डिसीज हो गई, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, बट वो उस ऑल्टरनेटिव को ना बता के एक एक्सपेंसिव मेथड बताएंगे ताकि क्यों वो पैसे कमा पाए। वो सस्ता वाला तरीका नहीं बताएंगे लोगों को। तो इस वजह से फॉर एग्जाम्पल लाइक सम मेडिकल practitioner are found to prescribe superfluous medicine injections और saline when simple medication में, कि बहुत ज्यादा एक महंगा सा इंजेक्शन बता दिया, मेडिसिन बता दी, जबकि जो सस्ती वाली मेडिसिन है वो नहीं बता पाई। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. सिर्फ 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अफोर्ड कर पाती है सारी मेडिसिन जो कि बताई जाती है। हेंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. जिसको हम सपोज हम किसी को नहीं कह सकते कि ये पुअर है, बट जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है पे करने के लिए। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजीशंस टू पे द एक्सपेंसेस। तो एक रिपोर्ट कहती है कि 40% ऑफ लोग जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में किसी इलनेस के मारे, या तो उन्होंने बोरो करा होता है मनी या फिर अपना कुछ बेचा होता है पैसे के लिए। For those who are poor, every illness in a family is cause of great anxiety and distress. तो जो लोग पुअर होते हैं उनके लिए काफी मतलब टेंशन हो जाती है कि किसी को अगर कोई बीमारी हो गई। What is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor are in a first place undernourished. जब जो पुअर है वो सबसे पहले undernourished होगा, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं अपने खाने में। These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings. उनको नहीं मिल रहे हैं poor people को, and therefore are more likely to fall ill. इसलिए वो ज्यादा ill होते हैं compared to the people who are living a decent life. The expenses on illness make their situation even worse. तो अब जब अगर वो बीमार पड़ गए तो उनका वो और ज्यादा उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. अब क्या, कि सिर्फ लैक ऑफ मनी नहीं है कि अगर पैसे नहीं है तो यही एक वजह नहीं है कि लोगों को नहीं मिलता ट्रीटमेंट। सपोज वुमेन की हेल्थ को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, देन अगर कोई आदमी बीमार पड़ा है और एक वुमेन, एक मेन और एक वुमेन बीमार पड़ी है, तो इम्पोर्टेंट किसको दी जाएगी, मेन की लाइफ को दी जाएगी कंपेयर टू दैट ऑफ वुमेन। नाउ ट्राइबल एरियाज में फ्यू हेल्थ सेंटर्स हैं और वो जो कि अच्छे से रन नहीं करे जाते हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। नाउ व्हाट कैन बी डन? There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is responsibility of the government to provide quality health care services to all citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of the people. अब क्या है कि हमारी देश में, हमारी कंट्री में हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है और एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे।
स्पेशली किनको, पुअर और डिसएडवांटेज को, मतलब जिनको एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं, जो अच्छी कंडीशंस में नहीं रह रहे, उन लोगों को। सो हेल्थ किस पे डिपेंडेंट है? बेसिक एम्यूनिटीज पे, कि अच्छी सी जगह पे वो रहें, अच्छा सा खाना खाएं, क्लीन वाटर लें। तो ये सब भी सिचुएशन इम्प्रूव करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, अगर हमें हेल्थ सेंटर, अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना है। नाउ एंड दिस कैन लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। नाउ द केरला एक्सपीरियंस। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayat. They could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure proper planning was done for water, food, women's development, and education. This meant that water supply schemes were checked, the working of schools and Angadwadis are ensured, and specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicine, insufficient hospital beds, not enough doctors remain, and this need to be addressed. अब केरला का क्या 1996 में केरला गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना जो 40% है बजट, स्टेट का बजट, वो पंचायत को दिया। अब पंचायत ने क्या करा, उनको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने प्लान करी, और इस हिसाब से वाटर का, फूड का, वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन का ध्यान रखा गया। इस वजह से सिचुएशन क्या हुई, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। बट थोड़ी थोड़ी सिचुएशन अभी भी खराब है, लाइक शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन कम है, और इनसफिशिएंट हॉस्पिटल में बेड्स कम है, इनफ डॉक्टर्स नहीं है। बट फिर भी थोड़ी सिचुएशन हमारी केरला में सही हुई। एक अनदर कंट्री का भी देखते हैं, द कोस्टा रिकान अप्रोच। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका में है, और वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री है ये। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकान उसके कॉन्स्टिट्यूशन में मेन रीजन है उसका। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army, कि आर्मी हम नहीं रखेंगे। This helped the Costa Rican government to spend the money that army would have used on health, education, and basic needs of the people. The Costa Rican government believes that country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to health of its people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education in all levels. अब इस कोस्टा रिका कंट्री ने क्या करा, अपने देश में आर्मी नहीं रखी, विच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इट इज completely irrelevant to according to India. For India पूरा irrelevant है, but still we should know. कुछ साल पहले कोस्टा रिका ने ये लिया कि उसके यहाँ हम आर्मी नहीं रखेंगे, और जितने पैसे आर्मी से बचे उसने सारे जो फंड्स थे वो किस में लगाए, हेल्थ में, एजुकेशन में, और बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल में लगाए। तो क्योंकि गवर्नमेंट को क्या बिलीव था कि लोगों को हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और उनकी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। तो इस वजह से वो काफी इम्प्रूव हुए। सो नाउ दिस chapter is completed. If you had any doubt in this chapter, you can comment below and tell me what do you want me to teach you next. So thank you.